میرے محترم بزرگ بھائیو، عزیز دوستو، جس مہینہ سے ہم گزر رہے ہیں وہ مہینہ نہایت ہی معزز اور مکرم مہینہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک اس مہینے کا بڑا مقام اور مرتبہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ، کہ مہینوں کی گنتی منہا اربعۃ حرم، اور ان مہینوں میں 4 مہینے حرمت کے مہینے ہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا منہا اربعۃ حرم ذالک الدین القیم، اور یہی ٹھوس دن ہے۔ فلا تظلموا فیہن انفسکم، تو ان مہینوں میں ان خاص طور پر ان 4 مہینوں کے اندر کہا کہ تم اپنے نفس پر ظلم مت کرو، اور سب سے بڑا ظلم جس کو قرآن و حدیث میں بتایا گیا ہے وہ شرک ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا، اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک ٹھہرانا، یہ سب سے بڑا ظلم ہے۔ ان الشرک لظلم عظیم، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ شرک یہ سب سے بڑا ظلم ہے۔ فرمایا فلا تظلموا فیہن انفسکم، تو ان مہینوں کے اندر تم اپنے آپ پر ظلم نہ کرو۔ اور سب سے بڑا ظلم تو شرک ہے، اس کے بعد کوئی آدمی اپنے بھائی پر ظلم نہ کرے، کوئی شخص اپنے رشتہ داروں پر، قرب و جوار میں بسنے والے لوگوں پر ظلم نہ کرے، غربا مساکین پر ظلم نہ کرے، کیونکہ یہ ظلم اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نفس پر حرام قرار دے دیا ہے۔ فرمایا کہ حدیث قدسی کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ انی حرمت الظلم علی نفسی وجعلتہ بینکم محرما فلا تظالموا، کہ ہم نے ظلم کو حرام قرار دیا ہے اپنے نفس کے اوپر۔ فلا، کہا کہ انی حرمت الظلم علی نفسی، کہ میرے اپنے نفس پر حرام قرار دیا ہے، تو تم کسی کے اوپر ظلم نہ کرو۔ وقاتل المشرکین کافہ کما یقاتلونکم کافہ، یہ لمبی آیت ہے۔ اس آیت کریمہ سے یہ پتا چلا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک 4 مہینے یہ حرمت کے مہینے ہیں، اور اس کی تشریح حدیث کے اندر آتی ہے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، عن ابی بکرۃ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا ان الزمان قد استار كهيئته يوم خلق السماوات والارض، یوم خلق اللہ السماوات والارض، تاکہ یاد رکھو زمانہ اپنی حیات پر گھومتا ہے جس دن سے اللہ نے آسمان اور زمینوں کو بنایا۔ کہا کہ السنۃ 12 شہرا، سال 12 مہینے کے ہوتے ہیں، منہا اربعۃ الحرم، اور 12 مہینوں میں 4 مہینے حرمت کے ہیں۔ ثلاث متوالیات، 3 مہینے تو پیدر پہ ہیں، اور وہ 3 مہینے کیا ہے؟ ذوالقعدہ وذوالحجہ والمحرم، یعنی ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم، یہ 3 مہینے حرمت کے ہیں۔ ورجب ومضر، یہ 3 مہینے تو لگاتار ہے، یعنی عربی میں کہتے ہیں یہ 3 مہینے سردن ہے اور 1 مہینہ فردن ہے۔ فرمایا کہ ذوالقعدہ وذوالحجہ محرم ورجب ومضر، اور رجب کا مہینہ جو جمادہ اور شعبان کے درمیان ہے، متفق علیہ۔ میرے بھائیو، میرے عزیز، میرے دوستو، تو ان جو 4 مہینے حرمت کے ہیں، ان مہینوں میں 1 مہینہ محرم الحرام کا مہینہ ہے۔ سبحان اللہ، کتنا معزز اور مکرم مہینہ ہے، بلکہ اس کی فضیلت کے تعلق سے
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अफदलुस सियाम बाद रमजान शहरुल्लाहिल मुहर्रम, कहा कि रमजान के बाद अगर कोई रोजा सबसे अफजल है तो वो मुहर्रमुल हराम का रोजा है। वो अफजलुस सलात बादल फरीदा, और सबसे अफजल नमाज फर्ज नमाज के बाद कोई है तो वह रात की नमाज है। मेरे भाइयों, मेरे अजीज, मेरे दोस्तों, तो जिस महीना से हम लोग गुजर रहे हैं वो महीना निहायत ही मुअज़्ज़ज़ और मुकर्रम है अल्लाह तबारक व तआला के नजदीक, और उस महीने के अंदर कसरत से रोजा रखना ये ज्यादा अफजल है, सवाब का काम है। मेरे भाइयों, मेरे अजीज, मेरे दोस्तों, हजरत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा से मरवी है, वो फरमाते हैं कि अन्न नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़दिम अल मदीना फवजद अल यहूद सियामन यौम आशूरा फक़ाल लहुम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मा हाज़ल यौम अल्लज़ी तसूमूनहु फक़ालू हाज़ा यौमुन अज़ीम अंजल्लाहु फ़ीहि मूसा व क़ौमहु व अग़रक़ फ़िरऔन व क़ौमहु फ़सामहु मूसा शुक्रन फ़नहनु नसूमुहु फ़क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़नहनु अहक़्क़ु व औला बिमूसा मिनकुम फ़सामहु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अमर बिसियामिही मुत्तफ़क़ुन अलैह। हजरत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा से मरवी है, वो फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत करके जब मदीना तशरीफ लाए, मक्का मुकर्रमा से मदीना मुनव्वरा जब हिजरत करके तशरीफ लाए, फवजदल यहूद सियामन, तो यहूदियों को 10वीं मुहर्रम को रोजा रखते हुए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पाया। फ़क़ाल लहुम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन यहूदियों से कहा कि मा हाज़ल यौम अल्लज़ी तसूमूनहु, ये कौन सा दिन है कि तुम लोग इस दिन रोजा रखते हो। यहूदियों ने कहा ये हाज़ा यौमुन अज़ीम, ये आज का दिन यानी 10वीं मुहर्रम का दिन ये बहुत ही अजीम दिन है, बहुत ही फजीलत और बरकत और बहुत ही मुहतरम दिन है। कहा कि हाज़ा यौमुन अज़ीम, ये बहुत ही अजीम दिन है। आज ही के दिन अल्लाह तबारक व तआला ने मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम और उनके कौम को फिरौन से नजात दिया। वअग़रक़ फिरऔन व आला, और आज ही के दिन अल्लाह तबारक व तआला ने फिरौन और उसके कौम को गर्क कर दिया। फसामहु, तो हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने आज के दिन रोजा रखा, शुक्रन, अल्लाह तबारक व तआला की शुक्रिया के तौर पर। फनहनु नसूमुहु, तो यहूदियों ने कहा कि इसी वजह से हम आज रोजा रखते हैं 10वीं मुहर्रम को। सुन लीजिए, फ़क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नहनु अहक़्क़ु व औला बिमूसा मिनकुम, कहा कि मूसा की सुन्नत पर और मूसा के तरीके पर और उनके हदीये पर अमल करने के हम ज्यादा हकदार हैं, हम ज्यादा हकदार हैं। फ़सामहु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी 10वीं मुहर्रम को रोजा रखा। वो अमर बिसियामिही, और आपने लोगों को भी रोजा रखने का हुक्म दिया। और मुस्नद अहमद के अंदर ये रिवायत है, और ये रिवायत हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी है, इसी की तरह रिवायत है, लेकिन उस रिवायत के अंदर ये लफ्ज ज्यादा है, वहाज़ल यौम अल्लज़ी इस्तवत फीहि सफीना अलल जूदी फ़सामहु नूह शुक्रन लिल्लाह। कहा कि, और उस रिवायत के अंदर इमाम जो मुस्नद अहमद के अंदर है उसमें ये इजाफा है, फरमाया कि आज ही के दिन सफीने नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कश्ती जूदी पहाड़ पर जो रुकी थी वो आज ही के दिन रुकी थी। फसामहु, और अल्लाह तबारक व तआला ने उन लोगों को नजात दिया। फसामहु नूह, तो नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने आज ही की 10वीं मुहर्रम ही को उन्होंने रोजा रखा अल्लाह तबारक व तआला की शुक्रिया के तौर पर। मेरे भाइयों, मेरे अजीज, मेरे दोस्तों, तो 10वीं मुहर्रम की बड़ी फजीलत है। हर आदमी को चाहिए कि 10वीं मुहर्रम को रोजा रखे, लेकिन और रोजा रखने का एहतमाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया, और सहाबे किराम ने भी रोजा रखने का हुक्म, सहाबे किराम ने भी इसका एहतमाम किया है।
एक दूसरी हदीस है हजरत अर्रबिया बिनते मुअव्वज़ इब्न अफरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से मरवी है, वो फरमाती है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मरतबा 10वें मुहर्रम को जो मदीना के इर्द गिर्द जो बस्तियां थी उन बस्तियों की तरफ सहाबे कराम को भेजते थे और ये बता करके भेजते थे कि ये बता देना मन कान अस्बह साइमन फलयतिम सौमा, कि अगर आज के दिन कोई शख्स अगर रोजा शुरू कर दिया है तो उसको चाहिए कि वो रोजा पूरा करे। वमन कान अस्बह मुफ्तरन, और अगर कोई आदमी रोजा तोड़ दिया है फल यतिम बकियत यौमी, तो बाकी दिन वो रोजा रहे। अगर गलती से किसी ने आज के दिन अगर रोजा तोड़ दिया है तो ये चाहिए कि खाना पीना अभी से बंद कर दे शाम तक, और कहा कि बकिया दिन रोजा रखे। यानी इस कदर एहतमाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या करते थे। ये रिवायत तो बुखारी और मुस्लिम के अंदर है, मुत्तफक अलैह रिवायत है और इसकी बड़ी फजीलत है। इसके ताल्लुक से एक और हदीस है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स 10वीं मुहर्रम को रोजा रखेगा उसका सवाब क्या बताया कि इन्नी अहतसिबु अलल्लाहि अन युकफ्फिर अस्सना कल्लती क़ब्ला, कहा कि एक साल यानी आज से पहले जो एक साल है मुकम्मल एक साल की गुनाह अल्लाह तबारक व तआला माफ फरमा देगा। इसको इमाम मुस्लिम ने अपनी किताब सही के अंदर इस हदीस को रिवायत किया है। तो मेरे भाइयों, मेरे अजीज, मेरे दोस्तों, गोया के पता ये चला कि 10वीं मुहर्रम की बड़ी फजीलत है अल्लाह तबारक व तआला के नजदीक, और 10वीं मुहर्रम को चाहिए कि आदमी रोजा रखे और उसका सवाब यह है कि एक साल का गुनाह अल्लाह तबारक व तआला माफ फरमा देगा। सुभान अल्लाह। लेकिन इस रोजा रखने के 3 मरातिब हैं। पहला मर्तबा या पहली फजीलत यह है कि या रोजा रखने का पहला दर्जा यह है कि आदमी 9वीं मुहर्रम और 10वीं मुहर्रम दोनों को रोजा रखे। इसलिए 9वीं मुहर्रम को कहा गया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया एक हदीस के अंदर, सही हदीस में कहा कि लाइन बकीतु इला काबिलिन, कि अगर मैं अगले साल अगर जिंदा रहा लासूमन तासे वल आशिर, तो मैं 9वीं मुहर्रम और 10वीं दोनों को मैं रोजा रखूंगा। इससे पता यह चला कि अफजल यह है कि इंसान 10वीं मुहर्रम के साथ साथ 9वीं मुहर्रम को भी रोजा रखे। और ये किस लिए? इसलिए कि ताकि यहूदियों की मुखालफत हो, क्योंकि यहूदी लोग 10वीं मुहर्रम को रोजा रखते हैं, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हम यहूदियों की मुखालफत करेंगे, 10वीं को तो हम रखेंगे ही और 10वीं के साथ साथ 9वीं मुहर्रम को भी हम रोजा रखेंगे ताकि यहूदियों की मुखालफत होगी। और दूसरा मर्तबा या दूसरा दर्जा यह है कि सिर्फ नहीं, अगर किसी को मुयस्सर हो सके 2 दिन तो कम से कम 10वीं मुहर्रम को जरूर रोजा रखे, 10वीं मुहर्रम को जरूर रोजा रखे। तो यह दूसरा दर्जा है। और तीसरा दर्जा यह है कि एक दिन पहले यानी 9वीं मुहर्रम को और या एक दिन बाद यानी 11वीं मुहर्रम को रोजा रखे, यानी एक दिन पहले एक दिन बाद। तो इस सिलसिले में हदीस भी है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है जिसमें फरमाया खालिफुल यहूद, कहा कि तुम यहूदियों की मुखालिफत करो, सूमू यौमन क़ब्लहू औ बअदा, कहा एक दिन पहले या एक दिन बाद तुम रोजा रखो। लेकिन अफसोस की बात है कि यह रिवायत सही नहीं है। इस रिवायत के बारे में उलमा का, अहले इल्म का कलाम है और यह सही सनद से साबित नहीं है। इसलिए मेरे भाइयों, मेरे अजीज, मेरे दोस्तों, सबसे अफजल यह है कि आदमी सिर्फ या तो 2 दिन रोजा रखे, 9वीं मुहर्रम को या 10वीं मुहर्रम को, या सिर्फ 10वीं मुहर्रम को रोजा रखे, और या सिर्फ 10वीं को रखे, या अगर किसी के पास अगर क्या कहते सहूलत है तो 9वीं और 10वीं दोनों मुहर्रम को रोजा रखे। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें इस बात की तौफीक दे। आगे मैं ये बताना चाहता हूं कि मुहर्रमुल हराम के ताल्लुक से लोगों के 3
तीन किस्म के लोग हैं, या तीन किस्म की जमात कह लीजिए, तीन किस्म के लोग हैं। एक किस्म वो है जिनको अहले सुन्नत वल जमात कहा जाता है, जो अहले सुन्नत वल जमात और जिनका मनहज और जिनका अकीदा और या जिनका मसलक बीच में है, न उनके मनहज के अंदर इफरात है, न तफरीत है, न गुलू है, और न ही उनके अंदर कोई कमी है। तो ये आले सुन्नत वल जमात है। तो आले सुन्नत वल जमात क्या करते हैं? 10वीं मुहर्रम को, जैसा कि सुन्नत है, 10वीं मुहर्रम को वो रोजा रखते हैं अल्लाह की रजा जोई के लिए, अल्लाह की खुशनुदी के लिए, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोजा रखा है और सहाबे कराम को रोजा रखने का हुक्म दिया है। इसलिए और आज ही के दिन मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला ने फिरौन से नजात दिया। आज ही के दिन नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती जूदी पहाड़ पर रुकी और अल्लाह तबारक व तआला ने नूह अलैहिस्सलाम को नजात दिया। तो शुक्रिया के तौर पर हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने रोजा रखा। तो इसीलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुक्म की मुताबिकत में और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और हजरत नूह अलैहिस्सलाम के शुक्रिया के तौर पर जो उन लोगों ने रखा था, उनकी सुन्नत की इत्तिबा में अहले सुन्नत वल जमात 10वीं मुहर्रम को रोजा रखते हैं, याद रखिए। और इसमें एक दूसरी जमात या दूसरे लोग वो है जो 10वीं मुहर्रम को खुशियां मनाते हैं। वो कौन है? वो यहूदी और नसारा है। यहूदी लोग 10वीं मुहर्रम को खुशियां मनाते हैं। क्यों खुशियां मनाते हैं? इसलिए कि हजरत हुसैन अलैहिस्सलाम को 10वीं मुहर्रम को शहीद किया गया। इसकी खुशी में वो यहूदी लोग खुशियां मनाते हैं। और तो ये जमात यहूदियों की हो गई। तो हम लोग खुशी मनाते हैं या हम लोग नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा और फरमाबरदारी करते हैं कि उन्होंने 10वीं मुहर्रम को रोजा रखा, तो इसलिए नबी की मुताबिकत में हम लोग यानी अहले सुन्नत वल जमात हम उस पर अमल करते हैं। और यहूदी लोग क्या करते हैं? तो हजरत हुसैन की शहादत की खुशी में उनको गम नहीं है, उनको खुशी है, क्योंकि यहूदी सहाबा के दुश्मन है, सहाबा को गालियां देते हैं। तो हजरत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की जो शहादत हुई है उसमें खुशी मनाते हैं। और तीसरी जमात वो है जो 10वीं मुहर्रम को गम मनाते हैं, इसलिए कि हजरत हुसैन की शहादत 10वीं मुहर्रम को हुई है। मेरे भाइयों, मेरे अजीज, मेरे दोस्तों, सही बात है 10वीं मुहर्रम को हजरत हुसैन की शहादत हुई, लेकिन शहादत होने का मतलब यह नहीं है कि हम सीनाकूबी करें और हम अपने बाल नोचें, हम रोए और गिड़गिड़ाएं। और हम कि ये तीसरी जमात कौन है? ये शियों की जमात है, शिया और राफिजियों की जमात है, जो किताबुल्लाह और सुन्नत रसूल के दुश्मन है, मुखालिफ है। वो आज के दिन वो लोग शिया लोग आज ही के दिन ताजिया बनाते हैं और मुहर्रम का पता नहीं हजरत हुसैन का पुतला बनाते हैं, न जाने कितनी बिदअत और खुराफात करते हैं। तो ये तीसरे किस्म के लोग हैं। इसलिए मेरे भाइयों, मेरे अजीज, मेरे दोस्तों, आप इन सब चीजों से दूर रहें। बल्कि आपको अगर अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत है तो आप जो है 10वीं मुहर्रम को रोजा रखें, बल्कि मुहर्रमुल हराम के महीने में कसरत से रोजे रखने का एहतमाम करें। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें सही सुन्नत पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अमालिना व मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व नशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअ व कुल्लु बिदअतिन ज़लाला व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। मेरे भाइयों, मेरे अजीज, मेरे दोस्तों, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये खुतबा मसनूना जिसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कुल्लु मुहदसतिन बिदअ, कि हर नई चीज वो बिदअत है, व कुल्लु बिदअतिन ज़लाला, और हर बिदअत गुमराही है, व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार,
اور کہا کہ ہر گمراہی جہنم کی طرف لے جانے والی ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، میرے عزیز، میرے دوستوں، ہر وہ چیز جو سنت سے ثابت نہیں ہے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ثابت نہیں ہے، تو ایسی صورت میں ہمیں ان چیزوں سے بچنا چاہیے۔ اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، کہ جو شخص جان بوجھ کر، من احدث فی امرنا، ہمارے دین کے اندر کوئی چیز، نئی چیز اگر ایجاد کرتا ہے، ما لیس منہ، جو ہماری اس دین سے نہیں ہے، سنت سے نہیں ہے، حدیث سے نہیں ہے، اس کا ثبوت اگر کوئی شخص وہ ایجاد کرتا ہے، کہا کہ فہو رد، تو کہا کہ وہ جو ہے مردود ہے، اس کا کوئی اعتبار اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، میرے عزیز، میرے دوستوں، محرم الحرام اور یوم عاشورہ کے تعلق سے اور 10ویں محرم کے تعلق سے بے شمار بدعتیں ایجاد کی گئی ہے، بلکہ دشمنان اسلام نے بے شمار احادیثیں ایجاد کی ہیں اور لوگوں میں پھیلایا ہے، جبکہ وہ حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث نہیں ہے۔ اور اس سلسلے میں بہت سخت وعید آئی ہے حدیث کے اندر کہ اگر کوئی شخص جان بوجھ کر کے کوئی چیز نبی کی طرف منسوب کرتا ہے اور وہ چیز نبی کی نہیں ہے، تو کہا کہ ایسے شخص کو چاہیے کہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من کذب علی متعمدا، جو شخص میرے اوپر جان بوجھ کر جھوٹ بولتا ہے، من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، تو اس کو چاہیے کہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ انہی احادیث میں سے جو احادیث موضوع ہے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، ان احادیث میں سے یوم عاشورہ کے تعلق سے ایک حدیث گڑھی ہے۔ وہ حدیث اس طرح ہے، من وصى علی عیالہ یوم عاشورہ وصى اللہ علیہ، کہا کہ اگر کوئی شخص اہل و عیال پر 10ویں محرم کو زیادہ سے زیادہ خرچہ کرتا ہے، زیادہ سے زیادہ پیسہ خرچہ کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن اس کے قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اوپر آسانی کرے گا اور فراخی پیدا کرے گا۔ جو ہے یہ حدیث موضوع ہے۔ حضرت امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب مسائل کے اندر بیان کیا اور فرمایا ہے کہ فی اسنادہ ضعف، اس حدیث کی سند میں ضعف ہے، کمزوری ہے۔ امام عقیلی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ وہ غیر محفوظ ہے۔ امام ذہبی نے تاریخ اسلام کے اندر فرمایا کہ اس حدیث کی سند میں سلیمان بن ابی عبداللہ ہے، جن کے بارے میں پتہ نہیں کہ لا یدری من ہوا، کہا کہ لا یدرا من ہوا، کہ معلوم ہی نہیں ہے کہ وہ شخص کون ہے۔ بلکہ ابن حجر نے فرمایا کہ الحیثم بن صداق، اس حدیث کی سند میں الحیثم بن صداق بھی ہے، جن کے ضعف پر تمام علماء جرح و تعدیل کا اتفاق ہے۔ اور اس حدیث کو، اس روایت کو ابن جوزی نے موضوعات کے اندر ذکر کیا ہے اور فرمایا ہے کہ جو راوی اس کے اندر ہے، یعنی الحیثم بن صداق، ان کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ یروی الطامات عن العامش، عامش سے، تو کہا کہ جھوٹی جھوٹی چیزیں وہ روایت کرتے ہیں۔ اور یہ روایت ملا علی قاری کی ایک کتاب ہے الاسرار المرفوع، کیا کہتے ہیں، المرفوع فی الاحادیث الموضوعہ، یہ ضعیف حدیث کی ایک کتاب ہے، اس کتاب کے اندر انہوں نے ذکر کیا ہے۔ اسی طرح محرم الحرام کے تعلق سے ایک اور حدیث جو ہے گڑھی ہے کہ من احیا لیلۃ عاشورہ، کہ جو شخص 10ویں محرم کی رات کو جگتا ہے، فکأنما عبد اللہ مثل عبادت اہل السماء، کہ کوئی شخص اگر 10ویں محرم کی رات کو جگتا ہے اور عبادت کرتا ہے، تو گویا کہ زمین و آسمان کے اندر جتنی چیزیں ہیں یا جتنے لوگ ہیں جو عبادت کرتے ہیں، ان کی عبادت کرنے کے برابر ان کو ثواب ملتا ہے۔ اور اسی طرح فرمایا کہ ومن صلی 4 رکعات، اور جو شخص 10ویں محرم کو کی رات میں اگر 4 رکعتیں نماز پڑھتا ہے، ہر رکعت میں الحمدللہ 1 مرتبہ اور قل هو اللہ احد 1 مرتبہ، اور کیا کہتے ہیں، اور اگر کوئی اس طرح پڑھتا ہے کہ غفر اللہ له ذنوب 50 عاما، تو اللہ تبارک و تعالی 50 سال
50 साल की इबादत का सवाब उसको देगा, और 50 बरस कहा के इबादत का सवाब जो 50 बरस पहले जो गुजर गया उसका सवाब उसको देगा, वह 50 मुस्तकबलिया, और 50 साल जो आने वाले हैं उनका सवाब अल्लाह तबारक व तआला देगा। ये सब हदीस है जो गढ़ी है। इस हदीस के बारे में इमाम इब्न जौजी ने इस पहली बात तो इसको इमाम इब्न जौजी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताब अल मौज़ूआत, जो मौजू अहादीसें एक जगह जमा किया है, उस सिलसिले में एक किताब है किताबुल मौज़ूआत। उस किताब के अंदर उन्होंने जिक्र किया है और उन्होंने फरमाया है कि ला युशक्कु बिमा यानी फी ज़ाफ़िही, यानी इस हदीस की ज़ाफ़ में किसी किस्म का कोई शक नहीं है। और इस सिलसिले में क्या कहते हैं, इमाम सयूती की किताब है अल-आली अल-मसनूआ फिल अहादीस अल-मौज़ूआ, ये किताब है, उस किताब के अंदर भी ये जिक्र किया है और ये हदीस जो है मौजू है। इसी तरह यौम आशूरा के ताल्लुक से एक और हदीस है, कहा कि इन्नल वहूश तसूम यौम आशूरा, कहा कि इंसान तो इंसान, जानवर भी 10वीं मुहर्रम को रोजा रखते हैं। और ये रिवायत भी मौजू है, और इस रिवायत को इमाम सयूती रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताब अल-आली अल-मौज़ूआ की अहादीस अल-मौज़ूआ के अंदर जिक्र किया है, और इमाम कनानी ने अपनी किताब तंज़ीह अश-शरिय्अह के अंदर भी जिक्र किया है, और इब्नुल जौज़ी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताब किताबुल मौज़ू में भी जिक्र किया है। तो ये सब अहादीस ज़ईफ है, मौजू है। इसलिए मेरे भाइयों, मेरे अजीज, मेरे दोस्तों, हम वही काम करें जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है। दरूद शरीफ पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। इबादल्लाह रहिमकुमुल्लाह, इन्नल्लाह यअमुरु बिल अदलि वल इहसानि व ईताइ ज़िल क़ुरबा व यनहा अनिल फ़हशाइ वल मुनकरि वल बग़य यइज़ुकुम लअल्लकुम तज़क्करून। उज़्कुरुल्लाह यज़्कुरुकुम वदूहु यस्तजिब लकुम व लज़िक्रुल्लाहि तआला औला व अजल्लु व अतम्मु व अहम्मु व अकबर। व अक़ीमुस्सलाह।